Today we are going to finish composition part. Today we are going to start our story, Greed is a Curse. So it's on page number 99. Okay? Open your book as well so you can underline the difficult words or words for dictations. Okay? Open your book. It's on page number 99. The topic we are going to study today is Greed is a Curse. ठीक है, लालच बुरी बला है. So let's start. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है. There lived a merchant. ठीक है, एक merchant रहता था in a village में with his family, अपनी family के साथ. ठीक है, एक merchant village में अपनी family के साथ रहता था. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है. There lived a merchant in a village with his family. ठीक है. The thing you should notice about the story is we write story in the past tense. ठीक है. So most of the time we use words such as was, were, second form of the verb. Where there is a second form of the verb, we do not use any helping verb. Okay? So lived is the second form of verb here. Once upon a time, एक दफा का जिक्र है, there lived a merchant in a village with his family. He had a beautiful hen. ठीक है, उसके पास क्या था? उसके पास एक beautiful hen थी, which laid a golden egg every day. जो हर रोज सोने का अंडा देती थी. ठीक है, laid is the second form of lay. ठीक है, स्पेलिंग्स देखते जाएं साथ साथ. Late, merchant, beautiful. ठीक है, these are the dictation words. He had a beautiful hen which laid a golden egg every day. ठीक है, जो हर रोज सोने का अंडा दिया करती थी. But लेकिन the man was not satisfied. लेकिन वो आदमी इससे satisfied यानी कि मुतमईन नहीं था. ठीक है, वो इससे बिल्कुल नाखुश था. Because he was a greedy person with what he used to get daily. ठीक है, वो चीज जो उसे हर रोज मिला करती थी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, मुतमईन नहीं था. He wanted to be a rich person soon. वो चाहता था, वो चाहता था to be a rich person soon. वो जल्द ही अमीर इंसान बनना चाहता था. So तो उसने क्या किया? One day he thought hard. उसने बहुत ज्यादा सोचा and at last आखिरकार he clicked upon a plan. He clicked upon a plan मतलब कि उसको एक तरकीब सूझी, उसने एक मंसूबा बनाया. He decided, उसने फैसला किया to kill the hen, कि वो hen को मार देगा and get all the eggs together. ठीक है, ये उसने सोचा, उसने प्लान बनाया कि वो hen को मारकर सारे eggs एक ही दिन में हासिल कर लेगा. He took a sharp knife. उसने एक sharp तेज knife ली. ठीक है, took is the second form of take. So he took a sharp knife and killed the hen. और उसने hen को मार दिया and cut its body open. ठीक है, और उसने उस नाइफ से उसकी बॉडी को ओपन कर लिया. There was nothing but blood all around. उसके आसपास और कुछ भी नहीं था but blood all around. लेकिन आसपास सिर्फ क्या था? ब्लड था. No trace of any egg at all. कोई भी ट्रेस, कोई भी निशान एग्स का वहां पर नहीं था. ट्रेस कहते हैं निशान को. ठीक है, नो ट्रेस ऑफ एग. सो नो ट्रेस ऑफ एनी एग एट ऑल.
There was nothing but blood all around and no trace of any egg at all. He was highly grieved. उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ. Highly grieved. 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 ठीक है. He was highly grieved. उसको बहुत अफसोस हुआ because क्योंकि now अब he would not get even one single egg. वो जो हर रोज एक सिंगल एग लिया करता था उस मुर्गी से, वो उससे भी उसने हाथ धो बैठा. वो अब वो भी उसको मिलने से कासिर हो गए. रहीमा वकार, बेटा स्टॉप योर वीडियो. He was highly grieved. उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ because now अब he would not get even now one single egg. अब वो एक भी egg हासिल नहीं कर सकता था. The outcome of his greed. Outcome किसको कहते हैं? Result को. ठीक है. The result of his greed, उसकी लालच का नतीजा क्या हुआ? Was that क्या था? That he started becoming poorer and poorer. कि वो गरीब से गरीब तर होता चला गया. ठीक है. द आउटकम ऑफ हिज ग्रीड, बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, ही वॉन्टेड टू गेट ऑल द एग्स ऑल टुगेदर विच वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन क्या हुआ था? उसकी ग्रीड का नतीजा ये निकला. रिजल्ट ऑफ हिज ग्रीड वॉज दैट, ये निकला था कि ही स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर. वो गरीब से गरीब तर होता चला गया. बिकमिंग होता चला गया. How much foolish he was. ठीक है. Now लास्ट लाइन में क्या है? How much foolish he was. वो कितना foolish था, वो कितना बेवकूफ था. He didn't know that कि वो all eggs hen से एक ही दिन में हासिल नहीं कर सकता. ठीक है. And he was greedy as well. तो उसने अपनी foolishness की वजह से अपनी hen को भी खो दिया. ठीक है. So द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, इससे हमें क्या सबक मिलता है? देयर इज अ मॉरल बिहाइंड एवरी स्टोरी. ठीक है. उसमें कोई ना कोई आपके लिए लेसन होता है टू लर्न. ठीक है. ग्रीड इज अ कर्स. लालच बुरी बला है. ठीक है. यानी कि लालच करना बुरी बात है. जब हम लालच करते हैं तो हमें उसका किसी ना किसी तरह से नतीजा मिलता है जो कि बुरा होता है. ठीक है. सो मोरल, ग्रीड इज अ कर्स. ठीक है. लालच बुरी बला है. सो यहाँ पर आपने सबसे पहले जब आप स्टोरी लिखेंगे, you should keep it in your mind the tense you are going to use during the story. ठीक है. तो आपने जो स्टोरी में टेंस यूज करना है, इट शुड बी पास्ट टेंस. ठीक है. वो पास्ट टेंस होना चाहिए. और आपने स्पेलिंग्स का ख्याल रखना है. स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी. डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है इस सब की. ठीक है. इनमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं, जिनमें से मर्चेंट, MER मर्चेंट, CHANT मर्चेंट, ब्यूटीफुल. रिपीट आफ्टर मी. ठीक है. मेरे साथ रिपीट करें. दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स, सो यू शुड नो. नेक्स्ट इज ब्यूटीफुल. BEAUTIFUL. beautiful. Laid. 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 Next is satisfied. Satisfied. SATIS. FIED. Spied. Satisfied. ठीक है. The next word is thought. 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 Next is clicked. 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 The next is sharp. 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 Next is trace. 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 निशान. ठीक है. Highly बहुत ज्यादा. HIGHLY. Highly. Grieved. GRI. EVED. Grieved. ठीक है. Next is outcome. Outcome is the result, नतीजा.
O-U-T, out, C-O-M-E, come, out, come. The next is foolish, F-O-O-L-I-S-H, foolish. Okay, let's move on. The next thing we are going to do today is essay, a rainy day in summer. ठीक है? A rainy day in summer. So check out the spellings of summer, S-U-M-M-E-R, summer. A rainy day in summer. ठीक है? You are going to describe about a rainy day in summer. ठीक है? आजकल भी you should you know कि आजकल भी कितना ज्यादा अच्छा मौसम है. हर एक दो दिन के बाद बारिश जरूर हो रही है. So let's talk about it. ठीक है? Let's see what is in this essay. A rainy day in summer makes the weather pleasant. ठीक है? Many of the students क्या करते हैं, वो इसके स्पेलिंग गलत लिखते हैं. प्लेजेंट, ठीक है, इसके में SENT लास्ट में डालते हैं, वो सेंट बनता है. ये प्लेजेंट है, ANT, एंट. ठीक है, प्लेजेंट. आपने स्पेलिंग्स अपने माइंड में रखने हैं. डू नॉट मेक मिस्टेक. A rainy day in summer makes the weather pleasant. रेनी डे समर में क्या करता है, मौसम को बहुत ज्यादा खुशगवार, प्लेजेंट बना देता है. ठीक है, A rainy day in summer makes the weather pleasant. ठीक है, यहाँ पे आपको एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है अबाउट अ रेनी डे. जनरल डिस्क्रिप्शन में यू कैन यूज प्रेजेंट टेंस. ठीक है, आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं जब आप जनरल सी डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं अबाउट अ रेनी डे. रेनी डे कैसा होता है, ठीक है, तो रेनी डे इन समर मेक्स द वेदर प्लेजेंट. रेनी डे समर में क्या करता है, मौसम को खुशगवार बना देता है. आफ्टर हॉट समर मंथ्स के बाद वी कैन ओनली वेट फॉर रेनी डे. ठीक है, हॉट समर मंथ्स के बाद हम रेनी डे का सिर्फ और सिर्फ वेट कर सकते हैं. ठीक है, कि कब बारिश होगी. अक्सर लोग जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो बारिश का वेट करते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सेम थिंग. आफ्टर हॉट समर मंथ्स वी कैन ओनली वेट फॉर रेनी डे. ठीक है, जब समर शुरू होता है मई जून, उसके बाद इनके 2 महीनों के बाद जुलाई में आके जब बारिशें स्टार्ट होती हैं तो सब बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं. द फर्स्ट शॉवर, और जो पहली बारिश होती है, द फर्स्ट शॉवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू आवर लाइफ. ठीक है, सो नेचर हैज अ हीलिंग पावर. जब भी आप देखते हैं खूबसूरत मौसम को, खूबसूरत जगहों को, नेचर को जब आप देखते हैं तो उसकी हीलिंग पावर होती है. ठीक है, जो आपको खुश करती है. आप जिसको देखते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो जाता है. ठीक है, आई होप यू एग्री विद मी. तो इसीलिए ये देखते हैं आगे. द फर्स्ट शॉवर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू आवर लाइफ. सो दिस इज वेरी ट्रू. ऐसा ही होता है, जब पहली बारिश होती है तो हम सब की लाइफ में हम सब के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ तो था इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में कि रेनी डे कैसा होता है. ठीक है, अब नाउ यू हैव स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी अबाउट अ रेनी डे यू स्पेंड इन द समर. ठीक है, तो अब आपने यहाँ से स्टोरी बिगिन कर देनी है कि एक दफा आपने रेनी डे देखा, वो कैसा था. तो उसमें डेफिनेटली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट इवेंट तो आप उसमें पास्ट टेंस यूज करेंगे. ठीक है, सच एज, ये देखें, वॉज. ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि आपने टेंस कौन सा यूज किया है. वन डे इट वॉज वेरी हॉट. एक दफा बहुत ज्यादा गर्मी थी. देयर वॉज नो मूवमेंट इन द एयर. और हवा में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी. ठीक है, द एयर वॉज लुकिंग एज इट इज स्टिल. ठीक है, ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा चल ही नहीं रही. देयर वॉज नो मूवमेंट इन द एयर. द अर्थ सीम्ड टू बी बर्निंग. ऐसा लग रहा था कि जमीन
जल रही है, ठीक है। सीम्ड टू बी, सीम्ड का मतलब होता है ऐसा दिखाई देना या फिर ऐसा लगना, ठीक हो गया। वन डे इट वॉज वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी थी। देयर वॉज नो मूवमेंट इन द एयर। अब आपने स्टोरी शुरू की है उस दिन की जो कि रेनी डे था। उससे पहले की सिचुएशन अब आप बता रहे हैं कि रेनी डे से पहले क्या सिचुएशन थी, कि बहुत ज्यादा गर्मी थी, हवा में कोई हरकत नहीं थी और जमीन ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जल रही है। द ब्लेजिंग हीट ऑफ सन, ठीक है, चमचमाती धूप जो थी सन की वॉज अनबियरेबल, ठीक है, ना काबिले बर्दाश्त। अन यू एन बियर बी ई ए आर, बियर एबल ए बी एल ई, एबल, अनबियरेबल, ना काबिले बर्दाश्त। ब्लेजिंग हीट कहते हैं चमचमाती धूप को, जो धूप बहुत तेज लगती है आंखों को, ठीक है। द ब्लेजिंग हीट ऑफ सन वॉज अनबियरेबल, ठीक है, तमाम लोगों के लिए क्या था कि जो ब्लेजिंग हीट ऑफ सन थी वो नाकाबले बर्दाश्त थी। पीपल वर स्वेटिंग एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सनलाइट। पीपल क्या कर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे धूप से बचने के लिए। पीपल वर स्वेटिंग, ठीक है, पीपल जितने भी लोग थे उनको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। वर स्वेटिंग, ठीक है, जहां पर भी आईएनजी लगता है स्टूडेंट, कीप इट इन योर माइंड। यूज हम आईएनजी को तब करते हैं जब कोई एक्शन जारी होता है या जारी था। इसके बारे में बताने के लिए, जब भी कोई एक्शन जारी था या जारी है, आप बताने के लिए, ये शो करवाने के लिए कि ये एक्शन अभी भी हो रहा है, यू यूज आईएनजी फॉर्म, ठीक है, विद फर्स्ट वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल वर स्वेटिंग, ठीक है, वर शो कर रहा है कि इट इज अ पास्ट टेंस। पीपल वर स्वेटिंग, लोगों को पसीना आ रहा था, एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सनलाइट, और वो सनलाइट से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ट्राइंग टू प्रोटेक्ट themselves, खुद को, ठीक है, ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम themselves लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों की हम बात करें। पीपल वर स्वेटिंग एंड ट्राइंग टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम सनलाइट, लोगों को पसीना आ रहा था और वो खुद को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे थे। Okay, look at the next paragraph. All of sudden, ठीक है, what happened all of the sudden, क्या हुआ अचानक, clouds appeared, all of the sudden clouds appeared, बादल जाहिर हुए। इट बिकेम डार्क एंड बिगेन टू रेन, ठीक है, अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई, ठीक है। पास्ट टेंस शो करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब भी उर्दू की लाइंस में लास्ट में अलिफ छोटी है या भरिए आता है तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, कि जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और उसके लास्ट में अलिफ छोटी है या भरिए आती है तो फिर आप उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं विदाउट यूजिंग एनी हेल्पिंग वर्ब। इट बिकेम डार्क, अंधेरा छा गया, गया अलिफ, ठीक है, एंड बिगेन टू रेन, और बारिश शुरू हो गई, ठीक है, गई छोटी है। चिल्ड्रन रैन आउट इन द स्ट्रीट्स, ठीक है, और बच्चे गलियों में बाहर आ गए। रैन आउट इन द स्ट्रीट्स एंड एंजॉयड द रेन वेरी मच, और उन्होंने बारिश को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है, एंजॉय किया। लुक एट द स्पेलिंग ऑफ appeared, sweating. Next is Children ran out in the streets and enjoyed the rain very much. लोग बच्चे गलियों में बाहर आ गए और उन्होंने बारिश को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। Everyone was happy to see that. हर कोई बहुत खुश था ये देखकर। Everyone was happy to see that. हर कोई ये देख के बहुत खुश था कि it was raining, कि बारिश हो रही थी।
It rained for 2 hours. 2 घंटों तक बारिश होती रही मुसलसल. ठीक हो गया. Then फिर क्या हुआ? Then means फिर clouds dispersed. Dispersed का मतलब होता है scattered. Scattered हमने पीछे भी पढ़ा था स्टोरी में. Scattered का मतलब होता है बिखर जाना. ठीक है. तो क्लाउड्स क्या हो गए? डिस्पर्स्ड हो गए. डिस्पर्स्ड की जगह पर यू कैन यूज अनदर वर्ड डिसअपियर. ठीक है. तो वैसे डिसअपियर इज नॉट वेरी अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आपको डिस्पर्स्ड के स्पेलिंग ज्यादा मुश्किल लगते हैं, यू कैन चेंज इट. ठीक है. विद डिसअपियर. क्लाउड्स डिस्पर्स्ड, या आप लिख सकते हैं स्कैटर्ड. तो फिर बादल क्या हुआ? देन फिर बादल बिखर गए. एंड वेदर बिकेम वेरी प्लेजेंट. और वेदर, मौसम बहुत ज्यादा. अगेन देयर इज अ वर्ड प्लेजेंट. PLESANT. एंट आता लास्ट में. ठीक है. तो प्लेजेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ई के साथ लिखते हैं, SENT, सेंट, लेकिन ये गलत है. वेदर बिकेम वेरी प्लेजेंट. वेदर बहुत ज्यादा, मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया. Check out the spelling of dispersed. DIS. Dis. PERSED. Dispersed. ठीक है. Dispersed means scattered. Then clouds dispersed and weather became very pleasant. और weather बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया. A rainbow appeared in the sky. फिर क्या हुआ? What happened next was rainbow appeared in the sky. आसमान पर रेनबो अपीयर हुई, जाहिर हुई. फ्रॉग्स बिगेन टू क्रॉक. और फ्रॉग्स ने भी क्रॉक करना शुरू कर दिया. क्रॉक इज बेसिकली द साउंड ऑफ फ्रॉग्स. ठीक है. जो साउंड फ्रॉग क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रॉक. ट्रीज एंड बुशेस. ट्रीज और बुशेस. बुशेस इसको कहते हैं झाड़ियां. ठीक है. अंडरलाइन दिस वर्ड एज वेल. एंड क्रॉक. CROAK. Croc. Trees and bushes looked fresh and green. ठीक है. After the rain क्या हुआ? जब बादल dispersed हो गए, रेनबो अपीयर हुई. ठीक है. और फ्रॉग्स ने भी क्रॉक करना शुरू कर दिया. तो students, do not turn on your video, otherwise I will remove you from this class straight away. Trees and bushes looked fresh and green. बारिश के बाद हर कोई खुश हो जाता है. एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन. तो ट्रीज एंड बुशेस लुक्ड फ्रेश एंड ग्रीन. अ कूल ब्रीज ब्लू. बहुत ठंडी हवा चली. ठीक है. ब्रीज, ब्लू. ठीक है. हवा के चलने को हम क्या कहते हैं? ब्लो. एंड ब्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ब्लो. ठीक है. कूल ब्रीज, ठंडी हवा चली. आई केम आउट ऑफ माई हाउस. मैं अपने घर से बाहर आ गया. And found many children were floating paper boats on water. और मैंने क्या देखा? And what you have found is many children were floating paper boats on water. बहुत सारे children water पर पेपर बोट्स को फ्लोट कर रहे थे. ठीक है. फ्लोट करना क्या होता है? पेपर बोट्स जो हैं वो पानी में तैर रही थी. बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर बोट्स के साथ पानी में खेल रहे थे. आई ऑल्सो ज्वाइंड देम. मैंने भी उनको ज्वाइन किया. मैं भी उनके साथ मिल गया. इंडीड. इंडीड मीन्स बेशक. रेन वॉज अ ग्रेट गिफ्ट. रेन बहुत बड़ा तोहफा थी. ठीक है. सो that is all about today's lecture. Okay, today we have discussed a story and an essay. Okay, so I hope you will all remember it and practice this in your home. आपने ये करना है कि सबसे पहले इसकी डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है. Then you have to learn it and then write it on the page. ठीक हो गया? So if there is any kind of difficulty, ambiguity, you can ask me
any question from anywhere. ठीक हो गया? So let's begin. Fatma Sajid, beta unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम टीचर.